हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अवर लेक्चर नंबर 5 ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल्स। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इन फिगर 6.20, इस फिगर में डी इज पैरेलल टू OQ, DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR and DF is parallel to OR. Show that अब हमें क्या दिखाना है? EF is parallel to QR। हमें दिखाना है EF पैरेलल है QR को। सॉल्यूशन, हम लेंगे एक ट्रायंगल दैट इज POQ। इन ट्रायंगल POQ इसमें हमें पैरेलल है DE is parallel to OQ, DE is parallel to OQ using basic proportionality theorem BPT। PE divided by EQ, PE divided by EQ will be equal to PD divided by DO, PD divided by DO। Let it be equation first। Now in triangle POR, DF is parallel to OR। It is given DF is parallel to OR using basic proportionality theorem। PF divided by FR will be equal to PD divided by DO। PF divided by FR is equal to PD divided by DO। Let it be equation second। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यहां पे राइट साइड और राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड जो है वो इक्वल होंगे। दैट इज PE डिवाइड बाय EQ इज इक्वल टू PF डिवाइडेड बाय FR। अब यहां पे देखिए हमें क्या निकला, PE डिवाइड बाय EQ, PE डिवाइड बाय EQ इज इक्वल टू PF डिवाइड बाय FR। अगर हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं इन ट्रायंगल PQR, जो बड़ा ट्रायंगल है, इसमें हमें रेशियो क्या निकला? अब PE डिवाइडेड बाय EQ इज इक्वल टू PF डिवाइडेड बाय FR। PE डिवाइडेड बाय EQ इज इक्वल टू PF डिवाइडेड बाय FR। जब किसी एक ट्रायंगल में दो साइड्स का रेशियो सेम होता है तो लाइन जो है वो थर्ड साइड को पैरेलल होती है। दैट इज बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। व्हेन रेशियो इज सेम, then the line is parallel to third side, that is EF is parallel to third side, that is QR। यही हमें प्रूव करना था। Now question number 6 of exercise 6.2, according to this question in figure 6.21, इस फिगर में A, B and C are points on OP, OQ and OR। A, B and C, these are points on, A is point on OP, B is point on OQ and C is point on OR, such that AB is parallel to PQ। ये जो AB है ये parallel है किसको? PQ को। and AC is parallel to PR and AC is parallel to PR। show that हमें क्या दिखाना है? BC is parallel to QR। हमें दिखाना है BC भी parallel है किसको? QR को। तो देखिए हम पहले लेते हैं एक ट्रायंगल दैट इज POQ। इन ट्रायंगल POQ इसमें क्या है? AB is parallel to PQ, this is given। AB is parallel to PQ, so ratio will be same by, therefore by basic proportionality theorem। अब यहां पे देखिए OA divided by AP, OA divided by AP will be equal to OB divided by BQ। Let it be equation first। Now in triangle POR, now in triangle POR इसमें क्या है? AC is parallel to PR। This is given AC is parallel to PR using basic proportionality theorem। तो यहां पे क्या होगा? OA डिवाइड बाई AP, OA divided by AP
will be equal to OC divided by CR. OC divided by CR. Let it be equation second. यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट का जो लेफ्ट साइड है और सेकंड का जो लेफ्ट साइड है वो सेम है, तो जो राइट साइड है वो इक्वल होंगे. कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, तो यहां पे आएगा OB डिवाइड बाई BQ इज इक्वल टू OC डिवाइड बाई CR. अब यहां पे देखिए हमें क्या निकला, OB डिवाइड बाई BQ इज इक्वल टू OC डिवाइड बाई CR. नाउ इन ट्राइंगल OQR में हमें क्या रेशियो निकला, OB डिवाइडेड बाई BQ हमें बराबर निकला OC डिवाइड बाई CR. OB डिवाइड बाई BQ इज इक्वल टू OC डिवाइड बाई CR. जब रेशियो सेम होता है तो लाइन जो है पैरेलल होती है थर्ड साइड को. देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम दिस BC विल बी पैरेलल टू QR. BC इज पैरेलल टू QR. यही हमें प्रूव करना था. BC is parallel to QR. Now question number 7 of exercise 6.2. According to this question, using theorem 6.1, prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. हमें प्रूव करना है जो लाइन ड्रा की जाती है थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड एंड पैरेलल टू अनदर साइड, वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है. मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC. D is the midpoint of AB and a line is drawn through the midpoint, through this midpoint parallel to another side that is parallel to BC. अब हमें प्रूव करना है this DE bisects third side that is AC. We have to prove that AE is equal to EC. In triangle ABC, DE is parallel to BC. This is given. इस ट्राइंगल में DE जो है इट इज पैरेलल टू BC, ये दिया गया है. देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT, तो क्या होगा, रेशियो सेम होगा. AD डिवाइडेड बाय DB विल बी इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC. AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC. बट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. लेकिन D जो है इट इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सो दैट इज AD इज इक्वल टू DB. AD इज इक्वल टू DB. लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट. नाउ यूजिंग दिस इंस्टेड ऑफ AD वी कैन राइट AB. AD के बदले हम DB लिख सकते हैं. यहां पे देखिए, सो इक्वेशन फर्स्ट जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. AD के बदले हम लिखेंगे DB डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC. अब AD के बदले यहाँ पे आ गया DB, यहाँ पे अपना ही था डिवाइड बाई DB, और यहाँ पे था AE डिवाइड बाई EC, वो हमने ऐसे लिखा. DB इंटू 1. अब 1 बाई 1 दैट इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC. अब यहाँ पे देखिए EC इंटू 1 दैट इज EC इज इक्वल टू AE. अब AE जो है हमें बराबर निकला किसको, EC को. यही हमें प्रूव करना था. यहाँ पे देखिए हमें प्रूव करना था AE इज इक्वल टू EC, दैट इज इट DE बाइसेक्ट द थर्ड साइड. अब ये जो है DE ये थर्ड साइड दैट इज AC को बाइसेक्ट करती है, मीन्स AE जो है वो EC के बराबर होना चाहिए था. अब AE जो है हमें निकला EC के बराबर.